Good evening, everyone. Welcome you all. Welcome, welcome. Just in a while we start. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions. Enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Karta, Spot, Digital, Womenpreneur and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel,
facility, quality and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kind of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc. etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc. etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc. etc. Government policies, support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. Thank you everyone. Now, I request our FIIP coordinator to take over and lead the program ahead. Thank you, Priyanka. Thank you so much for the brief introduction about the FIIP. Friends, welcome you all for this today's wonderful session. Before we get into topic, first of all, let us welcome our guest speaker for the day, Mr. Vikas Dangat. So, welcome, sir. Vikas ji, welcome on behalf of FIIP and entire team and audience. Friends, before we get into the real topic, actual topic, I would like to introduce about Mr. Vikas Dangat. He is basically from Junnar Taluka, from near Pune district. He is a mechanical engineer with material science specialization, as well as he has done diploma in business management from Tata Management Training Center. And after his education, he has worked around more than a decade in SK Bearing India Limited. So around 11 years or so. After his short stint of 1 decade, he himself founded many companies. I will just brief about these companies and all. He's the chairman of SV Group of companies. The first company he founded was in 1995. After his job, he left his job. He started his own company called SV Robotics and Automation India Private Limited, which he founded in 1995. Basically, it is a custom-built solutions provider for automation systems from concept to reality. That is his specialization. Okay. So I think he has already completed more than 2,000 various projects since inception of the company. Next, he has again he's a founder director of Ultra Precision Spindles Private Limited. Okay. So in the year 2002, which is a manufacture of and repairs of high RPM, high speed spindles, basically. Next, in the year 2003, he has found another company called SV Modular Conveyors Private Limited. Okay. So this is a company manufactures all types of conveyor belts. Okay. Again, I think he has already manufactured more than 10,000 conveyors
to cater automobile, pharmaceutical, logistics, etc. These companies. Again, he has found in 2000, every year almost he has found a new company, Next Gen Flying Systems Private Limited. He is a founder director again. 37 Please, बैकग्राउंड आवाज इसका आ रहा है, आप म्यूट करिए. Please mute yourself. So in 2004, he again found a Next Gen Drying Systems Private Limited. This is a solution provider in the field of air knife drying systems and manufacturing fruits and vegetables, food processing, and hygiene machines and all. So later he got into agricultural products, right? And he found another company called Vaishvik Foods Private Limited in the year 2008. It's an eminent and appreciated entity in the industry. Okay, so it's supplying and exporting ready to eat and ready to cook kind of canned and pickled vegetables, frozen fruits and vegetables. These kind of foods he has manufactured in this Vaishvik Foods Private Limited. So another agricultural based company he has found in the year 2015, that is AgriPure Natural Foods Private Limited. Okay, this is a basically cold grinding of spices and seasonings. So one more agriculture related company he found in the year 2016, that is Next Gen Hygiene Systems Private Limited. So friends, the today's topic what we have selected is such a great exposure for himself, and practically he is into this business also. We're all lucky, I can say, to have him on board today to guide us, to give input on the decided topic what you are saying. Okay. So with this brief introduction, I request Dangas Saab to take over. Dangas sir, once again I welcome you on behalf of FIIP and the entire audience team. These are all FIIP members. So I welcome you, sir. Over to you. So if you want me to share the PPT right now, shall I share right now? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर. Hello. Your voice is not. In time I have shared the screen. I think विकास सर के लिए कोई challenges है, 2 मिनट का time लेते हैं हम लोग. Yeah, sure. So friends, let us be attentive. I think we have got a very vast, knowledgeable person with us today, particularly in the area of this food processing and agricultural products. So he himself is running, I think, around 4 companies specialized into agriculture and food processing. What we saw just now in his profile. I'm trying my best. Just give me a minute. Sure. Hello. Yes, sir. You are audible. Yes. Okay. Yeah. Good evening to all of you. Very good evening, sir. Thank you, Mr. Devkar and FIIP team for inviting me for such a wonderful evening. Thank you very much, entrepreneurs. Thank you for the joinees. Thank you for my introduction, brief introduction. So, with the passion, actually, I enter into the food. There is a big history, but I don't want to waste more time on briefing how I have diversified from hardcore engineering to food. But this was just because one of my German friend really slapped on our practices, agriculture practices and the food processing practices. That was one of the major reason I decided to venture into food with the world-class facility, and that is how the Vaishvik and AgriPure, both the plants are being established world-class.
So our both the plants are BRC, IFS, and US FDA certified. Oh, great. So my German friend told me that Indians are never been committed on hygiene part and the delivery part. There is no consistency in the thought, and that was one of the trigger to start this food vertical. Apart from my hardcore engineering, we used to provide the solutions for every vertical. So rather, we were the people who provided more than 10,500 solutions from custom to real, concept to reality is our domain in every vertical. We are not simple manufacturers, but we try to understand the customer's need. We adapt their specifications, we learn their requirements, then we engineer it and we provide the total solution. That is how we tried in food also. Food is really interesting. In engineering, I found there are very limited processes, but in food and agriculture, it is really enjoyable. Rather, if you try to change the recipe or the sequence of your ingredients, your final taste, final color, final specifications of the products may get changed. So it is really interesting. In engineering, we learn only drilling, grinding, milling, few of the processes. And those are all typical, monotonous, every time the same processes. There are no different processes are involved into hardcore real engineering. Mechanical engineering I am saying about, because since I am a mechanical engineer. But then yes, with due course, there are a lot of developments happen with the electronics. And as everyone knows, these robots are doing the surgery. So there is a development, but the basic hardcore engineering is the same. But that is not the case in food and agriculture. It is changing. Rather, it is a dynamic field, I will say, and I'm really enjoying. 38,000 students, I'm giving the knowledge every year to different universities and different colleges. Last week only, I had been to Agriculture University, Rahuri, and then I got a shock that every agriculture graduates and postgraduates are keen to go to the government jobs. They were only asking me the questions related with all this preparation of these studies of these IAS and IPS exams, UPSC and MPSC. Nobody is really interested to come into the real hardcore engineering, agriculture and hardcore food processing after completion of the graduates. This is very sad part of it. I'm sorry to say, but people are not ready and willing to work on the farm. Rather, as you know, our Indian economy is basically 70% depends on the agriculture. Correct. Maximum GDP, as you see, the world food processing sector in one of the slide I have mentioned how this food is very important. World food processing sector status I have penned down on first slide that the sector is of 8.66 trillion US dollar. And if you see the annual growth rate is happening around 6.72, which is really very large. And Indian food processing sector, if you compare to the world, by 2025, we will able to reach to 535 trillion US dollars. Indian food processing is expanding at a CAGR rate of 11%. It will only can happen if. Sir, sorry to interrupt. थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर लीजिए प्लीज, ऑडियंस डिमांड कर रहे हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. सॉरी. सी हमारा जो ग्रोथ है फूड का, it is 100% depends on only the agriculture. If we are not going to produce into the agriculture, how we can process and we can reach to these numbers? So it is agriculture or food processing, it is going hand in hand. There is no way, only food processing plants or food processing will not help if we are not able to get the raw material consistently at a right specification at right time, as everyone knows very well. So agriculture and food are brothers with each other and they have to move ahead with hand in hand.
The scope of food sector is very large. As you know, in India, there are a lot of multinationals are working like Hindustan Liver and many more. They are with the big name. And scope, if you ask me, it is very large. Can you shift to the second slide of mine? So areas of food processing, it starts from many sectors, but prior to that, I would like to go back again to the agriculture. This we can discuss. If our agriculture is sustainable, then definitely food processing will be sustainable. That is what is our perception and assumptions. So agriculture, whatever is been happened last 50 years during this green revolution, our soils are being contaminated. हमारा सॉइल जो है वो केमिकल जब यूज करना चालू किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, उसकी वजह से नॉन फर्टाइल हो गया है. हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है. आप सब जानते हैं कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक स्लोगन लगाई थी कि जय जवान जय किसान. तो हमारा जैसा जवानों को हम मानते हैं वैसा किसानों को भी मानना चाहिए, मानते रहेंगे, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री की सोच थी. तो दैट वाज रियली एब्सोल्युटली करेक्ट. और आप ये भी जानते रहेंगे कि जो भारत देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो चुके वो महाराष्ट्र से थे, श्रीरामपुर एरिया से, मिस्टर अन्ना साहब शिंदे, जिन्होंने 17 साल भारत देश की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लीड किया हुआ है. और it is very fortunate to me, I am really fortunate to work with their son, Mr. Anil Shinde, who is heading their Anna Sahib Shinde Foundation and who is also the chairman of Indo-African Chamber of Commerce. So I am really lucky to work with them, and I have realized one important thing, that Mr. Anna Sahib Shinde's foresight was absolutely way ahead. During that time, he was the agriculture minister during Pandit Nehru ji. He was the agriculture minister with Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, and so on. 17 वर्ष ते agriculture minister राहिलेले आहेत भारताचे, आणि त्यांची धोरणं, त्यांची लोकसभेत झालेली भाषणं मी ऐकलेली आहेत, त्यांचे पुस्तकं, उनके किताब हमने पढ़े, उनके बुक्स हमने रीड किए. And such a wonderful person was there as agriculture minister, and very low profile. As you know, his name is no more, but he was instrumental to, he was rather founder member, founder director of even first corporate cooperative sugar mill, that is Pravara Sugar Sahakari Sakar Karkhana. He was one of the founder member of Pravara Sugar Sahakari Sakar Karkhana. So hats off to him. And with his vision, we are working for Indian agriculture now with this foundation. Sir, more participants are interested in the Hindi language. Can you? Hindi only. Okay, I will continue with Hindi. My vocabulary in Hindi is very small. As you know, I learned my English when I was with 9th standard. So my vocabulary is very little bit, but I will try to explore. I may not find the equivalent words, but I will try to. Marathi is also fine, sir. No problem. No problem. So as I was telling about the Anna Sahib Shinde Foundation and the Indian agriculture, how the big diversified agriculture in our country, as you know, the different geographies in Northeast, North, then South, then West, it is fully diversified. Our weather conditions are different, our soils are different, our inputs are different, our crops are different. If you see the crops in Telangana area or Andhra Pradesh, where a lot of chilies are being grown, a lot of millets are being grown, as Government of India has been already declared year of the millet this year. So all the focus is at Hyderabad and that region where these millets are being grown. So it is full of colorful country, full of different vegetables, full of different grains, different fruits are being grown in different geography. So agriculture is really an important sector in our GDP. But as I was telling you during this time, ये क्या हो गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया हमारे सरकार ने
टू फीड द आवर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। ये थ्रू आउट वर्ल्ड में हो गया है कि जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है तैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत पड़ी साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से देयर वेयर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। जैसे कि 72 में हमारे यहाँ ड्रॉट हो गए तो हमने अमेरिका से भी मिलो इंपोर्ट किया था। तो हम ऐसे कंडीशन में थे, 40 साल पहले हमारे कंट्री में डैम्स नहीं थे, इरिगेशन लैंड नहीं थी, फर्टिलाइजर्स वेयर नॉट अवेलेबल, तो हम लोग सब इंपोर्ट करते थे। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम था, इरिगेशन नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। हम लोग एज यू नो विद द बुलक वी वेर यूज्ड टू take the water from the well and we were doing the irrigation, so there was a lot of limitations. But ये जैसे कि population बढ़ गई वैसे requirement भी खाने की बढ़ गई, every requirement of खाने की change होते गई। तो वो हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने फिर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज बनाने की कोशिश की। उससे क्या हो गया 2 फायदे हो गए और बहुत सारे नुकसान भी हो गए। उससे लार्ज नंबर ऑफ एकरेज और हेक्टर्स ऑफ लैंड केम अंडर कल्टीवेशन। जो हम लोग हाथ से करते थे या जानवर से करते थे खेती, वो उसमें बड़ा चेंज आ गया। 40 साल में हम लोग ट्रैक्टर्स और पोकलेंट्स वगैरह यूज करना चालू किया है। उससे खेती का जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बच गया, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हो गए, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसकी वजह से खेती का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और वो खेती का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में साइंटिस्ट लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड भी वैरायटीज लाई, हाइब्रिड वैरायटीज लाई। जो करंट जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन आके गई, वो एनवायरनमेंट में सस्टेन होने के लिए अलग अलग वैरायटी, अलग अलग हाइब्रिड्स साइंटिस्ट लोगों ने, ब्रीडर साइंटिस्ट ने डेवलप की और उनका प्रोडक्शन लेना चालू किया टू ब्रिंग द सस्टेनेबिलिटी। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। वो तभी के जमाने की जरूरत थी कि भाई जो इंक्रीज पॉपुलेशन है हमारी, बढ़ी हुई आमदनी है, उनको फीड करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये काम किया। तो वो करते वक्त हमारा पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। उसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि हम लोग जो फादर पहले जैसे तरीके से हम लोग खेती करते थे, उसको अभी बड़ा अंग्रेजी में नाम दिया गया है बायोडायनेमिक वे ऑफ फार्मिंग। जो हमारा एंशिएंट फार्मिंग था, वो फार्मिंग जब भी था तभी सिचुएशन बहुत अलग थी, पॉपुलेशन कम था, हम लोग फीड कर सकते थे। बट लेकिन इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए ये सब हाइब्रिड वैरायटीज आ गई, उसमें केमिकल का यूज ज्यादा होना चालू हो गया, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं रह गई, पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉपुलेशन जैसा बढ़ गए वैसा पॉल्यूशन भी बढ़ गया साथ साथ में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्रैक्टर्स आए, ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती हो गई। तो पोल्यूशन बढ़ते ही इम्यूनिटी कम हो गई हमारी सॉइल में। सॉइल में इम्यूनिटी कम होने से प्लांट में इम्यूनिटी कम हो गई। फिर हमें साइंटिस्ट लोगों ने वापिस संशोधन किए, उससे पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस किए। वो करने के लिए उन्होंने implication का कभी ध्यान दिया नहीं। They have not thought when they have developed these chemical synthetic pesticides and insecticides. But इसका सबका जो असर अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, that is that it become our land become non-fertile, our soil become non-fertile now. So अभी हाइब्रिड जो हम लगाते हैं उसको जर्मिनेशन के लिए भी हमें स्प्रेइंग करना पड़ता है केमिकल्स, जो उगाने के लिए भी हमको केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, पॉलिनेशन के लिए हमको स्प्रे करना पड़ रहा है, फिर फ्रूटिंग के लिए और यील्ड बढ़ाने के लिए भी केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट जो हमारा सॉइल नॉन फर्टाइल होने से गया है, अभी तो सॉइल बिकम पॉइजनस कंप्लीटली। जो एक्टिवेटेड कार्बन लेवल है हमारे सॉइल में से वो बिल्कुल कम हो गई है। वो इसके लिए हम बहुत साइंटिस्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमने तो अभी किस द सॉइल करके टैगलाइन हमने बनाया है, वो दैट इज बीन रजिस्टर्ड विथ पेटेंट अटॉर्नी रिसेंटली। किस द सॉइल म्हणजे हम मट्टी खाते थे लिटरली, जब हम बचपना में थे गांव में थे भी मट्टी खाते थे और वो डाइजेस्ट कर पाते थे, इतना सुगंध आता था मिट्टी का। अभी वो सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन इतनी डिटरेट हो गई कि हमारा सॉइल जो है वो
कंप्लीटली पॉइजनस हो गए और उसमें से जो केमिकल्स हैं वो पर्कुलेट होके हमारे रिवर में जाता है, वेल में जाता है, वही पानी हम पीते, हमारे जानवर पीते, और वो काऊ या भैंस के मिल्क में भी उसका अंश मिला है। इतने तक गए हैं कि हमारा मदर का मिल्क कंटेमिनेटेड हो गया है। इतने बैड कंडीशन है। द इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज बीन इंपैक्टेड ऑन ह्यूमन हेल्थ, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसका रीजन मेन है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। आपको समझ में आएगा ये मैं आपको संदर्भ मेरे पोस्ट लेक्चर में देने वाला हूं कि वो ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी कि हम केमिकल का यूज कम करना चाहिए। तो हमारे सेहत के लिए तो बहुत बड़ा फटका है। हम डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी खेती में बढ़ गई है कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम जब डील करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट, वी आर अनेबल टू मैच द प्रोडक्ट कॉस्ट विद द इंटरनेशनल लेवल, एंड इट इज बीन इंपैक्टेड एंड वी आर लूजिंग द बिजनेस अगेंस्ट थाईलैंड, मलेशिया, जिनकी हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते थे। वो कंट्री के प्राइजेस इतने कम है कंपैरेटिवली। वियतनाम, इंडोनेशिया, ये छोटे छोटे कंट्रीज है। हमारा देश इतना भी, महाराष्ट्र का स्टेट इतना भी एक कंट्री की साइज नहीं है, तो उनके साथ हम लोग कॉम्पीट करना मुश्किल हो गया है। उसके 2-3 रीजन है। ये हमारे फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, हमारे सॉइल नॉन फर्टाइल हो गई है, और दूसरा एक है मेजर रीजन दैट वी बिकम अ लेजी विद दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हम लोग खेती करते हैं लेकिन जो मार्केट में बेचा जाता है वो नहीं करते। हम खेती गन्ने की करते हैं, जो कि हमारी जो लैंड है पहले से इतनी खराब हो गई है और खराब हो रही है। गन्ना जरूर चाहिए, शुगर जरूर चाहिए, बट वी आर प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव शुगर। उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट हो गया है सॉइल के ऊपर, अगेन नॉन फर्टाइल हो गई है, पूरा सत्यानाश हो गया हमारे सॉइल का। अभी उसमें कुछ करना है तो वी हैव टू कीप आवर सॉइल बैरन विदाउट एनी कल्टीवेशन फॉर एटलीस्ट फॉर 3 years, तो ही हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन वापस ला सकते हैं और उसको सॉइल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये जो शुगर का एक हो गया है, और बाकी के भी जो क्रॉप है जो मार्केट को चाहिए, मार्केट लिंकेज जो चाहिए, वो हमारे फार्मर कभी सोचते नहीं। आपने आज ही देखा रहेगा कि ओनियन के प्राइसेस पूरे स्लैश डाउन हो गए। ओनियन इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 7 rupees। 7 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं फार्मर रिकवर कर रहा है। तो हमें फार्मर ने सोचने की जरूरत है। फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किए हैं, उनके लेके बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, इंसेंटिव्स लाए हैं, बहुत सारे सब्सिडीज है, वो फार्मर ने इकट्ठा करके आके उसका बेनिफिट लेना जरूरी है। और जो कस्टमर को चाहिए वो कल्टीवेट करने की जरूरत है। वो जिसको कारपोरेट फार्मिंग बोलते हैं या जिसको कम्युनिटी फार्मिंग बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक स्मार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया है। उसमें 1000 करोड़ फार्मर को प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए डिसबर्स करना है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आप 3-4 करोड़ नॉन रिफंडेबल ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आप ले सकते हैं। वैसा ही दूसरा प्रोजेक्ट आया है मैग्नेट में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक is giving more than 1000 crore through Panan Mandal. So there are nodal agencies being deputed in our state कि उनके थ्रू आपका प्रोजेक्ट जाना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी विल गिव इट टू यू टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। उसमें छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई किसी को प्री कूलिंग करना है और मार्केट में लिंकेज देना है, मार्केट में भेजना है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग करके कोई एक्सपोर्टर को देना है, प्राइमरी प्रोसेसिंग करके कोई प्रोसेसर को देना है, ये भी कर सकते हैं। वो एक रास्ता है जहां हम लोग फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं और वी कैन दैट वे ब्रिंग द सस्टेनेबिलिटी। और
जो केमिकल का यूज है, एक्सेसिव केमिकल का, वो हम जितना कम कर सके उतना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने वाला है। तो बायोलॉजिकल इनपुट बढ़ाना चाहिए, जो कि हमारी सॉइल जो है वो प्यूरिफाई हो जाए और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाए। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ हम हॉस्पिटल्स को खर्चा करते हैं, हम लोग निगोशिएट करते नहीं हॉस्पिटल का बिल और फार्मास्यूटिकल का बिल, बट हम लोग फार्मर का जो वेजिटेबल्स है उसके ऊपर निगोशिएट कर दे। 4 रुपए का भी माल रहेगा तो उसको बोलते हैं फार्मर को, हम लोग 4 आने कम करके दे दो। दिस इज अ साइकोलॉजी। ये हमारे कंट्री में होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जूते हमारे कंट्री में एसी शोरूम में बेचे जाते हैं और सब्जी रोड में बेची जाती है। ये बहुत सैड है, दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। बट हम लोग हमारे खुद के सेहत के लिए ये सोचने की बहुत जरूरत है। अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग के ऊपर लेके जाता हूं। एग्रीकल्चर, इसमें ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि नर्सरी, हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है नर्सरी का। नर्सरी भी सही ढंग से होती नहीं है, नॉलेज अपूरा है हमारे यहाँ, नॉलेज पूरा नहीं है। तो कोई नर्सरी का ट्रेनिंग लेके अच्छा नर्सरी बनाए और उसकी वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके प्लांट को ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसा हमारे बेबी रहते हैं वैसा प्लांट्स रहते हैं। बेबी को जब बेबी छोटी रहती है तब हम बोलते हैं कि अरे उसको संभालना चाहिए, उसको बाहर का खाना देने का नहीं है, मदर का मिल्क देने का। वैसा ही ये बेबी प्लांट्स रहते हैं नर्सरी में, तो उसकी ख्याल करने की जरूरत है। तो कोई एंटरप्रेनर बन सकते हैं, वो सिंसियरली ट्रेनिंग लेके अच्छा इंस्टीट्यूट से उसको नर्सरी बिल्ड कर सकते हैं और नर्सरी के जो प्लांट्स है उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं। तो नेचुरली फार्मर को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं फार्म में नर्सरी से, तो इम्यूनिटी मिलेगा प्लांट को और फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि द प्लांट्स आर सेल्फ सस्टेनेबल है एक्चुअली। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जैसे बॉडी में इंजन लगा है, पंप्स लगे, फिल्टर्स लगे, देन वेन्स लगे हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी सिस्टम में जो सेल्फ हीलिंग करते हैं। हमको बाहर के असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। बाहर के असिस्टेंट को की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि हम हमारे शरीर को अच्छी तरह से फ्यूल देते नहीं है, हम एडल्ट्रेटेड फ्यूल देते। अब आपका गाड़ी जो रहता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसमें मिक्स पेट्रोल डालो, क्या होता है? क्या होगा? मिक्स पेट्रोल डालेंगे तो उसकी गाड़ी की एवरेज कम आएगी, इंजन खराब होगा, उसका कार्बन रेसिड्यू ज्यादा रहेगा। सेम हमारा शरीर है, सेम सॉइल है, सेम प्लांट्स है। तो प्लांट्स, सॉइल और हमारा शरीर और जानवर, कोई भी फर्क नहीं है। जैसे हम हमारे शरीर के केयर लेते हैं, वैसा जमीन का केयर हर लेना चाहिए, which will help to reduce the production cost, which will help to reduce the excessive use of chemicals. Indirectly, we are going to help to reduce the global warming. So, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं ये थ्रू दिस वेबिनार कि आप लोग जितना फार्मर को और हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि हम एक्सेसिव जो केमिकल यूज कर रहे हैं खेती में वो कम करें। तो ये थोड़ा सा हो गया फार्मिंग का, ऐसे 2 घंटे 4 घंटे भी बोलते जाऊंगा मैं तो कम है। You can ask whatever questions you have, whatever briefing I have made as of now. Otherwise, I will move it to the food processing part of it. Whatever subject I have received from the organizers, I will try to more stick to the subjects. Is anybody having questions, please? Sir, at the end, we will have a question answer session. Okay. Definitely. Yeah. So I will move ahead Yes, sir. with food processing opportunities and then the points you have mentioned: technology hurdles, standards, certifications, customer expectations, need of market, and gap and scope. In short, each subject is having very large subject actually, which will require days together, but I will make it too short. So there are a lot of opportunities, as I mentioned in my one of the slide.
I'm sorry for that. This is been prepared by my colleague, so maybe some mistakes may be there. I was not having a time to sit across and do it, but he has done it. I'm sorry for that. Okay. So if you see, धान प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है. हमारी जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो लैंड है, ये पूरे वर्ल्ड में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है. जैसे कि जवार है, बाजरा है, मिलेट्स है. हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले देश है, लेकिन देश में से एक है. लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग है, इट इज हार्डली वी प्रोसेस. हम लोग खाली आटा बनाते, कुछ लोग खाली चिक्की बनाते थोड़ा बहुत, कुछ ग्रेन से, और कुछ लोग राइस से इडली का आटा बनाते. वही आटा अगेन, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग हाईली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बट द अपॉर्चुनिटीज आर इनॉर्मस. सिंपल जो फार्मर ने ये करना चाहिए या एंटरप्रेन्योर्स ने करना चाहिए, वो ग्रेन प्रोसेसिंग में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. कोई लोग एक जगह पे आके सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर सकते. अभी कलर सॉर्टर्स आ गए, ऑप्टिकल कलर सॉर्टर्स आ गए, डिजिटल कलर सॉर्टर्स आ गए, कि मशीन इफ देयर इज अ डेविएशन इन द कलर, 2 टन 3 टन 4 टन तक मशीन आ गए घंटे को. 4 टन ग्रेन्स घंटे को सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें से इंप्योरिटीज निकाल सकते हैं. कलर डेविएशन रहेगा, उसमें लिमिट्स लगा सकते हैं, अपर लिमिट, कोर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. उसमें से एक ही तरीके का ग्रेन आप दे सकते हैं, सुपरमार्केट को सप्लाई कर सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई एक्सपोर्टर को दे सकते हैं. सो ये जो मैंने फर्स्ट आइटम लिखा है ग्रेन सॉर्टर्स, ग्रेन प्रोसेसिंग का, उसमें ये खाली सॉर्टिंग पैकेजिंग का ही इतने बड़ा पैगामे पे पोटेंशियल है. बट देन इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तो बहुत कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. लेंटिल्स भी सेम है. लेंटिल्स में हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, बर्मा से कॉम्पीट कर रहे हैं, कनाडा से कॉम्पीट कर रहे हैं. उनकी प्राइस हमारे से भी कभी कभी कम आती है. आपको सरप्राइज होगा, ऑस्ट्रेलियन चना जो है, जिसको चिकपी बोलते हैं, वो हमारे से कम प्राइस में मिलता है कभी कभी. कैनेडियन लेंटिल्स हमारे से भी सस्ते हैं. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज्यादा है, वो आवरली $10 उनका लेबर का वेजेस है. घंटे को $10 या $12 लेबर को देते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर को. तो $10 की जो है, तो कितना $10 का क्या हो गया, देखो कितना पैसा उनका प्रोडक्शन कॉस्ट में जाता रहेगा लेबर में. $1 85 रुपीज का है, $10 बोलो तो 850 रुपए हो गए. तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है. हमारे खेत में 1 एकड़ में समझो 3 मजदूर काम कर रहे हैं, 4 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हम लोग कितना मैक्सिमम पैसा देते हैं, और जो मजदूर उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कितना पैसा देते हैं, कितनी तफावत है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिर भी उनकी कम है. इसका मतलब हमारे इसमें बहुत बड़ा गैप है, हम कहाँ तो भी गलती कर रहे हैं. तो मैं आगे के इसमें जो गैप और स्कोप जो है वो मैं आपको बताऊंगा. I will let you know in my another slides that it is been clearly mentioned what is the gap and what is the scope. So पॉलिशिंग कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, रीपैक कर सकते हैं, सॉर्टिंग अगेन इधर कर सकते हैं. अगेन लेंटिल्स के भी बाय प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, दैट आई विल लेट यू नो. द ग्रेन प्रोडक्ट्स, ग्रिड्स एंड फ्लोर, कोर्स एंड फाइन, तो अलग अलग मार्केट में रिक्वायरमेंट रहती है. जैसे कि दलिया है, दलिया को ग्रिड्स बोलते हैं, तो हर एक ग्रेन का भी ग्रिड्स की रिक्वायरमेंट रहता है. अभी यू विल बी सरप्राइज टू नो फ्रॉम मे, हमारा आदमी लोगों का खाना, ह्यूमन का खाने से भी पेट फूड इज बीन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, और उसकी कॉस्ट 4 गुना ज्यादा है. जो पेट्स है उनकी प्राइस 4 गुना ज्यादा है. कंट्री लाइक जर्मनी का जो पॉपुलेशन है, दे आर हैविंग 50% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑफ 50% पेट का पॉपुलेशन है, क्योंकि दे आर फीलिंग लोनली. कोई घर में बुढ़े रहते हैं, उनके यहाँ कंप्लीटली ऐसे अपने हमारे इंडिया का जैसा कल्चर नहीं है, उनका कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है. सो दे आर ऑल न्यूक्लियर फैमिलीज. सो उनके लिए पेट मस्ट है. तो हर एक घर में पेट रहता है, तो पेट को खाना चाहिए. पेट का खाना कहां से आएगा?
उनके कंट्री में तो एक ही सीजन ग्रेन्स होते हैं। हमारी जैसी कंट्री है जहां कम से कम 80% डिफाइंड वेदर है। हमारे यहाँ अभी ठंड है, अभी गर्मी होगी, फिर बारिश आएगा। उनके यहाँ कंटिन्यूअसली लाइक ठंडी रहती है हमेशा। तो उधर उनके प्रॉब्लम्स अलग है, उनके फार्मिंग के डिसीजेज अलग है, क्योंकि जो पेस्ट को ग्रो होने के लिए जो एटमॉस्फेयर मिलता है वहां ज्यादा है, वहां पेस्ट ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। तो इसके लिए उनके यहाँ पेट के जो खाने के लिए हमारा जो खाना रहता है उससे भी महंगा खाना उनको पेट के लिए करता है। उससे भी बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं। हमारे इंडिया में नॉर्थ में और साउथ में तमिलनाडु में मार्स नाम का कंपनी है। इट इज अ मल्टीनेशनल। मार्स नाम का चॉकलेट का भी बनाने वाली कंपनी है उनकी। तो उनका 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए है पेट फूड में। तो उनके ये सब रॉ मटेरियल लगते हैं। कोई ग्रिट करके बना के देता है, कोई फाइन कोर्स पाउडर्स बना के देता है, और कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के देते हैं, उनको सप्लाई कर दे। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है। उनको ये सोर्सिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के यूनिट लगने चाहिए थे वो हिसाब से वो लगे नहीं है। हमारे स्टोरेज कंडीशन वर्स्ट है। वो एक अलग तरीका है। जहां हम लोग कल्टीवेट करते हैं, जहां हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वहां साइलोज लगने चाहिए बड़े बड़े, कि हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, कि एंटी इंसेक्ट चेंबर बना सकते हैं। वहां हम लोग साइलोज में रखेंगे तो 1 साल 1.5 साल हमारे धान को कुछ नहीं होने वाला। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग विथ लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, बट वो हमने वहां तक जाना चाहिए, वो मालूमात करके लेना हमारी जिम्मेदारी है। कैन यू शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, जैसे कि ग्रेन का मैंने बताया, लेंटिल्स का बताया, वैसा स्पाइसेस का है। स्पाइसेस में भी हम, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज इन द वर्ल्ड। आप हैरान हो जाएंगे मेरे से, हमारे देश में 8,000 टाइप की चिली ग्रो की जाती है। सबसे लो हीट वैल्यू, सबसे हाई हीट वैल्यू भी हमारे आसाम में भूत जलोकीय नाम की जो चिली है उसकी हीट वैल्यू जो है 275,000 स्कोविल, जो यूनिट है हीट वैल्यू पंजेंसी का काउंट करने का। हाईएस्ट चिली वर्ल्ड में जो पंजेंसी है वो हमारे कंट्री में बनती है। हाईएस्ट चिली प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बनता है वर्ल्ड में। लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि साउथ में जो तेलंगाना है या आंध्रा है, वहां चाइनीज लोगों के प्लांट लगे हुए हैं। वो लोग पूरे उनकी लेबर लेके 4 महीना यहाँ आते, खुद प्रोसेस करते और एक्सपोर्ट करके जाते हैं। और हम लोग यहाँ रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा सकते। उनकी वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है स्पाइसेस की। ये जो स्पाइस का जो हमारा जो फ्लेवर है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, सेहत के लिए जो भी अच्छे कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो पूरे वर्ल्ड को अभी मालूमात हो गए हैं। और पूरा वर्ल्ड अभी स्पाइसेस इंपोर्ट कर रहे हैं, चिली पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं, टर्मरिक। बिकॉज ऑफ कोविड everyone understood the importance of this important spice, which where we are the largest producer of the turmeric also in our in the world. So सेलम जो इलाका है, और हमारे यहाँ भी सातारा में बहुत सारा कल्टीवेशन होता है। सांगली तो मार्केट है, सांगली में बहुत बड़ा टर्मरिक का मार्केट है, उसको भी बहुत स्कोप है टर्मरिक को। आप जानते नहीं जानते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट टर्मरिक का खाली हम चिली पाउडर हमने सुना है, टर्मरिक पाउडर हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम खाने में कलर के लिए या टेस्ट एनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट अभी यूरोप में या अमेरिका में ड्यूरिंग कोविड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्मरिक लैटे, जो हमारे फोरफादर, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोलते थे, कोई सर्दी हो गया है, कहीं बुखार आ गया है, तो हमको टर्मरिक मिल्क देते थे। हल्दी का दूध ले लो, कुछ नहीं होगा, आज हल्दी का दूध ले लो, कल आपकी सर्दी गुल हो जाएगी। वो दैट बिकम वेरी पॉपुलर इन
US now, and it is been sold in canned product as a can. वो टर्मरिक मिल्क जो है, टर्मरिक का लैटे जो है, वो टर्मरिक लैटे नाम से कैन में पैक किया जाता है, और जैसे कोको कोला, थम्स अप, जूसेस के बॉटल्स है, वैसा वो बेचा जाता है, क्योंकि टर्मरिक इज कैरिंग इज हाई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज, और इट बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट स्पाइस। वो इतने बड़े पैगामे से इंपोर्ट किया जाता है अभी, लेकिन उसको भी हमारे यहाँ नॉलेज की कम है कि किसमें कुरकुम अच्छा है, कुरकुम क्या है वही मालूम नहीं है। जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कैसा किया जाता है उसका भी नॉलेज हमारे पास कम है, या हल्दी कुकिंग कैसी की जाती है, वो पीएच क्या चाहिए पानी का, क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना टाइम कुकिंग करना चाहिए, बाद में का ड्राइंग कैसा करना चाहिए, उसकी भी मालूमात कम है। तो वो मालूमात लेने करने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। हम तो कोई भी हमारे पास आए तो जो भी नॉलेज हमने गेन किए है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, लेकिन हमारे पास आना चाहिए। हम कितने लोगों के पास जाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू एवरीवन, बट जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चे लोगों को नॉलेज देने की, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को नॉलेज देने की, जो भी नॉलेज मैंने 104 कंट्री घूम के लिया है वो सब नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहता हूं, देता हूं। जब लोग मेरे पास आते हैं तब मैं देने की कोशिश करता हूं। तो स्पाइसेस जो है इंडिया में बहुत पैगामे पे इंडियन स्पाइसेस को डिमांड है वर्ल्ड में, लेकिन अगेन हमारा अलग अलग प्रॉब्लम्स है। हमारे स्पाइसेस में एफ्लाटॉक्सिन लेवल बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा है। हम लिस्टीरिया में प्रॉब्लम है, बाकी के इम्प्यूरिटीज बहुत रहते हैं। चिली हम लोग सॉइल पे ड्राई करते, उसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन लेवल बढ़ता है। आप जानते नहीं रहेंगे तो चिली के जो बैग्स रहते हैं, आपने कभी देखा है कभी भरते हुए बैग्स? एनीबडी हैव सीन द बैग्स फिलिंग इनटू द चिली फिलिंग इनटू द बैग्स? जब चिली का वॉल्यूम ज्यादा होने के लिए हमारा फार्मर क्या करता है, चप्पल से चिली, ड्राई चिली दबाता है। वो चप्पल कहां तक जाके आता है, आया रहेगा। सो वी आर अनेबल टू मेंटेन द हाइजीन लेवल्स आल्सो। तो ये पूरा जग जो है, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ ऐसे देख रहा है। तो जो हम लोग इम्प्यूरिटीज से करते हैं, फार्मर इतना मेहनत करता है कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है सीड्स में, सीडलिंग्स में, जो भी सोइंग में या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, वो सब आने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी वर्स्ट। वी डोंट केयर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, उसका इम्प्लीकेशंस हमें मालूम नहीं है। आप देखेंगे बॉम्बे पुणे रोड पे भी सब्जी वाली गाड़ी जाती रहती है। हमारे जुन्नर, आंबेगांव या यहाँ का पुरंदर तालुका है और सोलापुर, वहां से सब्जी बॉम्बे मार्केट में जाती है टेम्पो के ऊपर। तभी टेम्पो के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं। वो देखो कैसे बैठे हुए रहते हैं, उनके पैर में चप्पल रहती है, और वो चप्पल कहाँ लेके जाता है आदमी, स्लीपर कहाँ लेके जाता है, वो लेके वो सब्जी के ऊपर बैठते हैं और वो सब्जी हम लोग खाते हैं। तो उसका क्या दुष्परिणाम होता रहेगा, ऐसे हम लोग ट्रीट करते हैं। So it is very important to change our attitude and approach towards this business. हम खुद चेंज करना चाहिए, हम खुद ने उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये हो गया स्पाइसेस का। स्पाइसेस में ऑयल सा भी एक्सट्रैक्शन करना चालू किया है। जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मेडिसिन के लिए, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, वो भी एक्सट्रैक्शन अभी चालू हो गए। एक्सट्रैक्शन के अलग अलग मेथड्स है। CO2 सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। वो हम लोग जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से कर सकते हैं। बाद में स्पाइसेस के साथ साथ अभी हर्ब्स को भी बहुत डिमांड आना चालू हो गए। लॉट ऑफ हर्ब्स वी कैन ग्रो इन आवर रीजन, जैसे कि थाइम है, रोजमेरी है, ऐसे जो हर्ब्स है हम तो हर्ब्स ग्रो करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं इसको हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि डिल लीव्स है, शेपू बोलते हैं। शेपू जो सब्जी है, इट इज वन काइंड ऑफ अ हर्ब विच इज वेल इन डिमांड इन द वर्ल्ड, बट उसको वैल्यू एडेड में जाना चाहिए। उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, उसमें डिहाइड्रेशन की जरूरत है। वो
करने की बहुत जरूरत है, लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है, जो हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, और जिनको मालूम है वो लोग नॉलेज देना नहीं चाहते समाज को। तो समाज कैसा चेंज होगा, लोग कैसे चेंज होंगे, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे? सारे को लगता है कि उसने कुछ नहीं करना चाहिए, बट वी पीपल आर डिफरेंट, वी आर एनकरेजिंग यंगस्टर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, that rather that is one of our subject to develop the entrepreneurs, right? So there are a lot of, there is a masala banate hain hum log. If you see, masala are becoming very popular in the world. If you know, ये इंग्लैंड का नेशनल डिश क्या बन गया है? उनके नेशनल डिश का नाम है चिकन टिक्का मसाला, विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। एक खाली लंदन में शहर में 1000 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, 1000। सो यू इमेजिन हाउ द इंडियन फूड इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। सो इंडियन फूड को डिमांड कितनी है? नेचुरली इंडियन फूड की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को कितना डिमांड है, क्योंकि हमारे सॉइल में जो पैदा किया जा रहा है उसकी जो सुगंध है, कुछ सीड्स जो है हमारे एंशिएंट फोरफादर से आए हुए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड वैरायटीज एंड जीएमओ वैरायटीज वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का खून किए हैं हमने। जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर छप्पर के ऊपर पहले जो भी पंपकिन था या अलग वेजिटेबल्स थे वो रखती थी, और उससे सीड्स जो है अच्छे सीड्स सेपरेट करके वो रिकल्टिवेट करते थे, उसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया हमने। सीड कंपनी जब आ गई है तो उन्होंने जो F1 सीड्स बनाए हैं उससे आप रीजनरेट नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट टाइम जब रिकल्टिवेट करना है तो यू हैव टू गो बैक टू द अगेन सीड कंपनी टू बाय द सीड। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, सीड की कॉस्ट बढ़ गई है, वो हमें समझ में आया नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई, बट ये उसके इम्प्लीकेशंस है, उसका इतना बड़ा इम्प्लीकेशन हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर हो गया है, कोई उसको सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट वी नीड टू चेंज अ लॉट, बट हाउ individually we need to change. Like Dr. Vandana Shiva, you must have heard her name. She is an international activist against poison cartel. जो ये एक्सेसिव केमिकल का मैं जो बता रहा हूं आपको, उसके जो इम्प्लीकेशन है, हमारे कंट्री में कैंसर के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं सडनली। 20 साल पहले कैंसर किसी को मालूम भी नहीं था। अभी देयर इज अ कैंसर ट्रेन इन पंजाब। अब चांदवड़ तालुका जो है कोल्हापुर में, जहां से हमारे नेता आते हैं राजू शेट्टी साहब, एक दिन हम डायस शेयर किया था उनके साथ, उनके मदर को अवार्ड मिला था, वो सेरेमनी में हम बाजू बाजू में थे। तो हमने बोला कि आपके इलाके में 28,000 कैंसर पेशेंट्स हैं, कभी कैंसर का नाम भी हमने सुना नहीं था। तो घर घर में हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ फूड और ये एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इससे पानी खराब हो गया, हमारा मिल्क खराब हो गया, हमारे माता का मिल्क खराब हो गया, कहां से बेबी को इम्यूनिटी मिलेगा? सो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एम सॉरी फॉर डाइवर्जन, बट दिस वाज रिक्वायर्ड टू अगेन एंड अगेन टेल ऑल ऑफ यू, टू शेयर विथ यू। देन वेजिटेबल के लिए भी इतना ही पोटेंशियल है। हम लोग जैसे नहीं बोला कि वेजिटेबल कैसा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फॉरगेट अबाउट द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन आप मत ले लो, बट एटलीस्ट उसको अच्छी तरह से हैंडल करो, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हमने उसको अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसा हमारे जान रहता है वैसे मट्टी में भी जान रहता है और प्लांट में भी जान रहता है। इवन दो हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, बोलो तो वो निकाल दिया प्लांट से तो भी उनकी ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन चालू रहती है, और उसमें जीवाणु रहते, लाइव जीवाणु रहते हैं, और उससे क्या होता है कि बाहर की टेम्परेचर ज्यादा रही तो उसका डिटोरेशन चालू होता है, तो वो सूख जाता है, उसको रिंकल्स पड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि मॉइस्चर लॉस हो गया है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो गया है। तो हम लोग ये जो पड़े हुए हैं हम लोग सब, और बिजनेस में घोड़ा करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सोचने की जरूरत है कि जब हार्वेस्ट करते हैं उसको छाव में रखना चाहिए इमीडिएटली, आइदर उसको प्री कूलिंग रूम बनाना चाहिए। प्री कूलिंग के अलग अलग तरीके हैं,
जैसे कि हम लोग ग्रेप्स प्री कूलिंग करते हैं फर्स्ट ईयर से, वैसे रूट वेजिटेबल को प्री कूलिंग करने के लिए पानी से करते हैं, हाइड्रोकूलिंग बोलते हैं, हाइड्रोकूलर बोलते हैं। तो वो हम लोग करेंगे, ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो जो हमारा खेत में पैदा हुआ माल है, जो फ्रेश प्रोड्यूस है, वो सही ढंग से फ्रेश रहेगा एंड यूजर तक, और उसकी मॉइस्चर लॉस नहीं होगी, जो घाटा नहीं होगा वजन में, वो दिखने में अच्छा रहेगा, खाने में अच्छा रहेगा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो रिटर्न हो जाएंगे कि हम लोग कोल्ड चेन में और अच्छी तरह से कि उसको हैंडल करेंगे। तो ये भी एक बिजनेस है कि वेजिटेबल हार्वेस्ट करके, सॉर्टिंग करके, ग्रेडिंग करके, उसको वॉशिंग करके, पीलिंग करके, उसको प्री कूल करना अलग अलग ढंग से, और मार्केट में अपना खुद का ब्रांड बनाना, रिटेल पैक करो, बल्क पैक करो। मैंने जैसे बोला कि हमारा आशा ऐसे एक ही देश रहेगा जहां जूते एसी शोरूम में हम खरीदते और सब्जी रोड में गटर के बाजू में खरीदते। जो पेट में जाता है वो रोड में बेचा जाता है, धूल में बेचा जाता है, गटर के बाजू में बेचा जाता है, और जो पाव में हम ये करते हैं, पहनते हैं, वो एसी शोरूम में रहता है। सो कितना होशियार लोग हैं हम, ये हम खुद को हर एक ने हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। तो वेजिटेबल हो गया जैसा, बाद में फ्रूट भी वैसे ही है कि अभी यूरोप में जो ट्रेंड है, अभी वहां चिल्ड वेजिटेबल का जमाना है। अभी हर एक घर में लेडी बिजी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ऑल मॉडर्नाइजेशन। किसी को टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों भी, पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, घर में न्यूक्लियर फैमिली रहती है, तो खाना पकाने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो अभी नया ट्रेंड आ गया, पूरा सब्जी लेके आने से लोग उनका वहां के जो सुपरमार्केट्स है, वहां कट वेजिटेबल पील किया हुआ, साफ किया हुआ, सॉर्टिंग किया हुआ, पैक करके बेचा जाता है। जैसे कि हमारे इधर भी कुछ सुपरमार्केट्स है, वहां ये मिलता है, बेबी कॉर्न या पील्ड गार्लिक। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि हमारा सिटी भी देखो, पुणे सिटी का पॉपुलेशन 80 लाख हो गया है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए 2 घंटा लगता है, तो आदमी को टाइम नहीं है खाना पकाने के लिए। तो जितना हम लोग रेडीमेड सोल्यूशन देंगे, इसमें से अच्छा सोल्यूशन देंगे, वो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कोड़ी में सकाल न्यूज़पेपर, सह्याद्री एग्रो या कुछ सोसाइटी, कुछ लोगों ने डोर डिलीवरी चालू किया था। डोर डिलीवरी चालू से डायरेक्ट फार्मर को मार्केट मिला, कुछ जगह फार्मर्स मार्केट चालू हो गए, लेकिन उधर भी क्या करते हैं लोग, कुछ लोग होशियार है, ट्रेडर से माल लेते हैं, फार्मर से नहीं लेते और डायरेक्टली अपना फार्मर से लिया करके बेचते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ जेन्युइनिटी लाने की जरूरत है। तो होप जो सुन रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे और नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिहाइड्रेशन एक ऐसी चीज है जहां हम लोग 2 साल तक और 8 साल तक भी शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। जैसे कि सोलर ड्राइंग है, सन ड्राइंग है, कुछ प्रोडक्ट है। सन ड्राइड टोमेटो इज वेल एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड, बट जो वैरायटी है टोमेटो की, वो कल्टीवेट करने की जरूरत है। हमारे इसमें टोमेटो, हमारा जो रीजन है नारायणगांव, जुन्नर तालुका, वहां तो टोमेटो रोड पे फेंक देते कभी कभी बहुत प्राइस मिलती है। तो हमारा जो कल्टीवेशन है, हमारा जो एग्रीकल्चर है कल्टीवेशन, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द मार्केट लिंकेजेस। तो ये सस्टेनेबिलिटी हम लोग एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी लाना है बोलो तो क्या करना है, जो मार्केट में बेचा जाएगा फिक्स प्राइस पे, इतना प्राइस मिनिमम आपको मिलेगा, वही फार्मर ने कल्टीवेट करना चाहिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज टू बिकम वेरी पॉपुलर। तो शायद वो नियर फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो ट्रेड जो एग्रीमेंट्स है बिटवीन द वर्ल्ड और WTO, दे विल मेक हैपन। जैसे कि सिंगल ब्रांडिंग को उन्होंने परमिशन दिया है, मल्टी ब्रांडिंग को परमिशन नहीं दिया है, वो हो जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज। जैसे कि हमारे यहाँ गोदरेज का शॉप है, गोदरेज बास्केट या नेचर्स बास्केट या डीमार्ट है, वैसे और शॉप्स खुलेंगे, टेस्को, वॉलमार्ट, मॉरिसन, देन वेट्रोज एंड होल फूड्स जैसी चेन आएगी,
और वो यहाँ इंडियन लोगों को भी अच्छा देंगे, इंडियन लोगों को भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे और सरप्लस जो माल है वो एक्सपोर्ट करेंगे। आज हमारे कंट्री में सरप्लस इतना है, हम रोड पे फेंकते हैं, वो इतना प्राइवेट प्रोसेसिंग की जरूरत है ये कंट्री में। देखिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं थाईलैंड और मलेशिया का। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। मलेशिया का जितना भी प्रोडक्शन आ रहा है खेती में 75% अभी वो लोग प्रोसेस करते हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। कंट्री लाइक फिलीपींस, उसका कंपैरिजन हम देखेंगे, बनाना, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना बट आवर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इज लिटरली जीरो। हम लोग खाली दुबई भेजते हैं और वो भी बहुत कम। आप देखेंगे फिलीपींस जैसे कंपनी महाराष्ट्र से भी साइज कम है बट वो पूरे वर्ल्ड को बनाना देते हैं और बनाना प्रोडक्ट देते हैं। हम खाली बनाना चिप्स करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बनाना पाउडर करना चाहिए, स्टेम से ऑयल बनाना चाहिए, उसमें इतने न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट है हमें किसी को पता नहीं है। ग्लूटेन फ्री आटा बनाना चाहिए लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता या कोई एंटरप्रेन्योर डेयरिंग भी नहीं करता। तो एंटरप्रेन्योर ने ये वर्ल्ड मार्केट की सोचनी चाहिए रेदर टू थिंक फॉर द इंडियन मार्केट। अभी 6 महीना पहला बनाना कोई पूछता नहीं था, इतना सस्ता हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है कि हम लोग कर सकते हैं और डिहाइड्रेट कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मैंने बोला हंड्रेड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। कौन से मार्केट में क्या देना है ये जब आपको मालूम होगा वो हिसाब से आप प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हमारे जैसे लोगों को मिल सकते हैं, हम मशीन भी बनाते हैं, सब पूरा वेजिटेबल फ्रूट वॉशिंग मशीन भी बनाते हैं, ग्रेडिंग मशीन बनाते हैं, डाइसिंग स्लाइसिंग मशीन बनाते हैं, पेस्ट मेकिंग मशीन बनाते हैं, कैशू प्रोसेसिंग बनाते हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनको आप जाके मिल सकते हैं, उनके पास से टेक्नोलॉजी सोर्स कर सकते हैं। तो जैसे कि सन ड्राइंग, सोलर ड्राइंग बोला मैंने, हीट पंप से ड्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर सकते हैं, थर्मिक फ्लूइड हीटिंग कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स। आपको क्या कैसा कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में ड्राई लॉन्च करना है उसके ऊपर ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जैसे कि वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग आ गया है बट कॉस्टली प्रोसेस है। कुछ जगह इलेक्ट्रिक पल्स हीटिंग आ गया है, कुछ जगह कंटिन्यूअस माइक्रोवेव हीटिंग आ गया है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है। वो हमें हमारे जो यंग इंजीनियर्स है, हमारे जो यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है, जो भी अदर फैकल्टी के ग्रेजुएट्स है, वो यहाँ ये बिजनेस में आना चाहते हैं तो 100% आ सकते हैं। तो it is my request to all of you and saying that you must come, you must become the entrepreneur. बाद में पिकलिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, जूसिंग कर सकते हैं, पल्पिंग कर सकते हैं। there are lot of methods and technologies are available in the world. there are emerging technologies. हम तो 2030 में क्या टेक्नोलॉजी आएगा हम सीखते हैं, सिखा है ऑलरेडी। ऐसे एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग एग्जीबिशंस में, अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग लिखा या अलग अलग गूगल करके आपने पढ़ना चाहिए। जैसे कि फ्रूट पाउडर से, वेजिटेबल पाउडर से, रेडी टू ईट मिल्स है। अभी जमाना ऐसा आया है कि किसी को टाइम नहीं, जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ जो है घर में सब काम करते हैं तो उनको रेडीमेड खाना चाहिए। तो रेडी टू ईट मिल्स को इतना डिमांड बढ़ गया है, रेडी टू कुक को बढ़ गया है। कैन यू प्लीज शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Excuse me. Yeah. So there are a lot of opportunities into processing. As I told you, there is still gap to compare to the countries like जो हमारे साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे एशिया के कंट्रीज है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, वो लोग 75-80% तक प्रोसेसिंग में गए। हम लोग अभी तक 6% पे है। सो यू कैन इमेजिन द गैप बिटवीन द टू कंट्रीज। ये गैप बोलो तो क्या है कि 5% खाली प्रोसेस करते हैं हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका खाली शुगर बनाते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लेकिन खाली ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, खाली ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, उसका प्रोसेसिंग कुछ नहीं करते। So it is my request to think differently to this business from different angle, different perspective. You should learn in what country what is the requirement. वो हिसाब से हम लोगों ने काम करना चाहिए। तो बहुत सारा है, एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन बात कर सकते हैं, इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है।
आई एम सॉरी, जो भी टाइम लिमिट्स अलाउड किए है टाइम, वो टाइम में मुझे खत्म करने की जरूरत है. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज करियर एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज इन फूड सेक्टर फॉर यूथ. जैसे कि मैंने अभी वही बताया आपको कि यूथ को, एंटरप्रेन्योर को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं. रादर दिस विल बी द लार्जेस्ट सेक्टर, आई एम टेलिंग यू, इन द वर्ल्ड इन फ्यूचर, रादर टू रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. एंड वो फाइटर जेट बनाया है हमने, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि होगी, और सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगी. लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन आएगा, आई एम श्योर द कंट्रीब्यूशन मेजर विल कम फ्रॉम एग्रीकल्चर and food processing. You must have seen the thrust given into this budget also, 23 budget by Sitaraman ma'am and the government, central government, is more on agriculture and food processing. So thrust is on that. तो employment generation तो होने वाली है, लेकिन domain knowledge की बहुत कम है. I'm sorry to say that. हमारे पास जो knowledge है, there is a tremendous gap in our country. लिटरेसी एंड एजुकेशन. हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास पेपर है, हम बीकॉम हो गए, हम एमकॉम हो गए, हम एमटेक हो गए, हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बन गए, एमएससी बन गए, पीएचडी बन गए, लेकिन हमारे पास सॉफ्ट स्किल की बहुत कम है. मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं इंस्टीट्यूशंस को, संस्था चालकों को, कि भाई आप हमारे जो लोगों में सॉफ्ट स्किल्स लाने की जरूरत है. कि मे भी प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा, हमारा डोमेन नॉलेज रहेगा हमारे पास, हम क्वालिफाइड रहेंगे, लेकिन वो नॉलेज हमको इंटीग्रेट करने का है, तो हमने सॉफ्ट स्किल लाने की बहुत जरूरत है. कम्युनिकेशन स्किल, पंक्चुअलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो चीजें हैं, इसमें हमें बहुत कम लग रही है. मैं 100,000 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले चुका हूं. किसी को मैं पूछता हूं टेक्निकली, सॉफ्ट स्किल के बारे में भी पूछता हूं, तो दे आर वेरी वीक ऑन दैट. अभी मैं भी गांव से आया हूं, अंग्रेजी मेरे भी वोकेबुलरी कम है, हिंदी में कम जानता हूं, लेकिन जो कम्युनिकेट करना है वो सही ढंग से मुझे कम्युनिकेट करने को आता है सामने वाले को. वो कहा तो भी हमारे यंगस्टर्स में कम है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये रिक्वायरमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा होने वाला है. खाली एग्रीकल्चर नहीं और फूड प्रोसेसिंग नहीं, उसके जो आजू बाजू के जो सेक्टर्स है, जब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग बढ़ेगा तो नेचुरली प्री कूलिंग वाले को जॉब मिलेगा. प्री कूलिंग वाले बोलो तो जो मशीन बनाते हैं, हाइड्रो कूलिंग बनाते हैं, एयर कूलिंग बनाते हैं, जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन बनाते हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उनका बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है. उनके पास जो एम्प्लॉइज है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, उनको जॉब मिलेगा. बाद में जो सपोर्टिंग है, पैकेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पैकेजिंग मशीन का बिजनेस बढ़ेगा, वहां इंजीनियर्स लगेंगे, टेक्नीशियंस लगेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट लगेंगे. फूड सेफ्टी आया है बीच में. जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो फूड सेफ्टी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउसकीपिंग के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मशीन्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एयर हाइजीन बढ़ेगा, वाटर हाइजीन बढ़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएंगे, वाटर ट्रीट करते नहीं, हम चेक करते नहीं, लैबोरेटरीज बढ़ेगी, क्वालिटी ऑडिट्स हो गए. देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक का ऑडिट होता है, ग्लोबल गैप का ऑडिट होता है फार्म में, बाद में सेडेक्स के ऑडिट होते हैं. फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत सारे ऑडिटर्स है, जैसे कि हसब का ऑडिट है, बीआरसी का ऑडिट है, ब्रिटिश कंसोर्शियम का. यदि हमारे पास ये ऑडिट्स है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. आईएफएस है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर देयर, यूएस एफडीए इज देयर. सो लॉट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर देयर, बट वी नीड टू लर्न एंड अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट. उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है. हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बीआरसी का ट्रेनिंग देना चाहिए, गैप ऑडिट का देना चाहिए, हसब का देना चाहिए, ग्लोबल गैप का देना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का जाना चाहिए. लोगों को ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री में मालूम नहीं है, ये हमारे लेवल क्या रहना चाहिए वो मालूम नहीं है. यूरोपियन स्टैंडर्ड्स क्या डिमांड करते हैं, कितने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बैन है, वो हम लोग जानते ही नहीं है. ये सारा
फिर हमारा रिजेक्शन होता है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन है इट इज लेस देन 1%। एक तरह हम लोग बोलते हैं हमारा एग्रीकल्चर बेस है, एग्रीकल्चर इज आवर मेन इकोनॉमी। 70% लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आई एम सॉरी टू से हम लोग contribution है वो बहुत कम है। I can see Mr. Ramakant Harlaka is online. Sir, it is grateful that you joined us. You are into this extraction of oils. रमाकांत जी आपको म्यूट कर लीजिए। I'm sorry. हम लोग study ना करके हम लोग प्लान लगाते। There was a lot of people have invested in geranium processing. Unfortunately, the prices have gone down. So हम जो है सोच के करते नहीं है। वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ल्ड में क्या चाहिए, कंसिस्टेंटली क्या लगने वाला है खाना खाने के लिए। लोग खाने के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन द वर्ल्ड एज ऑन डेट। तो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। सॉफ्ट स्किल्स मैंने बोला हमारे पास जो शॉर्टफॉल्स है, इंटीग्रिटी नहीं है हमारे लोगों में। आधा नॉलेज रहता है, फुल नॉलेज लेते नहीं है, विलिंगनेस नहीं रहता है, हम सीखने के लिए तैयार नहीं है नया चीज। वी डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो नया टेक्नोलॉजी जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हमने बढ़ाना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, वो भी हमें कम लग रही है बहुत सारी जगह पे। और प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल कम है। मेरा एक इंटरव्यू हो गया था, जस्ट टू शेयर विथ यू, इन 2005 इट वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय सह्याद्री चैनल। एट दैट टाइम वो जो निवेदक थे उन्होंने मुझे पूछा था कि आप चाइना और महासत्ता होगी क्या हिंदुस्तान। मैंने वो उसी वक्त बोला था, 17 साल हो गए उसको, मैंने बोला था आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम बीइंग इंडियन। यस, हिंदुस्तान एक महासत्ता हो सकती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड और अप्रोच चेंज होने की जरूरत है। हम लोग बहुत लेजी है, हम सिंसियर काम है, हम काम चोर है थोड़ा सा। सॉरी टू से दैट, बट ये थोड़ा सा कम लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज व्हाट इज देयर। कंपैरिजन करेंगे हम चाइना के साथ, तो चाइना का जो है, व्हाई चाइना बिकम टू दिस लेवल, द रीजन बिहाइंड इज दे आर वेरी सिंसियर। देयर इफिशिएंसी, वर्कफोर्स का जो इफिशिएंसी है वो इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स है उनके साथ उनके कंपैरिजन होती है। हमारा जो इफिशिएंसी है, काम करने का तरीका है, हम खुद को फंसाते हैं। We are cheating ourselves, not others. So that is very big difference in our country and other part of the world. I'm sorry to say, but these skills need to be obtained by different way. Maybe हमने हमारे इसमें सोच में चेंज लाने की जरूरत है। हमने और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, प्रोफेशनल क्लासेस फॉर बिल्डिंग दी स्किल्स आइदर। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने ये उनके जो एकेडमिक्स है, सिलेबस है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व करने की बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत है। और जहां जहां इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूं, इंस्टीट्यूशन चलाने वाले डायरेक्टर बोर्ड को हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट फ्यू सॉफ्ट स्किल्स विद देम अपार्ट फ्रॉम द डोमेन। बिकॉज कारपोरेट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो अडॉप्ट करने की जरूरत है यंगस्टर्स ने, ऐसे मुझे लगता है। सॉरी, नेक्स्ट पेज प्लीज। So career and startup opportunities in food sector under this, what does it take to be a food entrepreneur? So technical knowledge के सिवा तो कुछ नहीं है। Without knowledge you cannot survive. Knowledge is the base. There is no substitute for experience and knowledge in this world. There is no substitute. You have to gain it as your own. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. That you have to gain. Nobody. मैंने जो भी कितना भी नॉलेज दिया तो उसका फायदा नहीं है। आप यहां से सुनेंगे, यहां से छोड़ देंगे। वो आपकी मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपको खुद को अंदर से लगना चाहिए कि मुझे नॉलेज लेने की जरूरत है, और वो ये लाइफ भगवान ने जो दिया है, इतना सुंदर लाइफ, वो लाइफ में मैं जो भी सीखूंगा वो इंप्लीमेंट करूंगा। ये पैशन चाहिए, पैशन। इट इज अ पैशन, इट इज नॉट अ कंपल्शन।
इट हैज टू बी ए पैशन, तो ही आदमी ये सीखता है और इंप्लीमेंट करता है। और दूसरा जो है मैनेजमेंट स्किल बोला है मैंने, पैशन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप कोविड की वजह से आपको सबको मालूम हो गए कि हम लोग इतना अनसर्टेनिटी है अभी, कल कोविड हो गया था, आज कोविड होगा, परसों और कोविड होगा और कोविड होगा और क्या होगा दुनिया को मालूम नहीं। ये अनसर्टेनिटी, आज बारिश आए, कल ठंड होगी, परसों स्टॉर्म होगा, कल ग्रेप्स खराब हो गए, परसों ओनियन खराब होगा, और कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू अडॉप्ट दिस चेंज इन अस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक चेंज इन आवर बिजनेस प्लान। और हमें चेंज करने की जरूरत है। मैं तो ऐसा चलता हूं कि कल हजारों प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। इफ अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट चीटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, देन नथिंग टू वरी। भगवान को भी घबराने की जरूरत नहीं रहता है यदि आप दिल से काम करते हैं। मेरा तो त्रिसूत्री मैं आपको बोलने वाला हूं एट द एंड कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज प्लीज। चैलेंजेस तो बहुत है, चैलेंजेस के सिवा आगे सरवाइव होना ही मुश्किल है। देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस। जो मजदूरी करता है, जो ऑफिसर करके काम कर रहा है ऑफिस में, जो मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, जो फैक्ट्री मैनेजर्स है, जो टेक्नीशियंस है, जो एक्सपर्ट्स है, टेक्नोलॉजिस्ट है, हर एक को चैलेंज आने वाला है और दे हैव टू प्रिपेयर देयर माइंड टू फेस दिस चैलेंजेस। तो ही आदमी सुकून से लाइफ अपनी जिंदगी बिता सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमारे यहाँ तो सरप्लस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसे एंटरप्रेन्योर जैसे मैं हूं, हम जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं हमारे फैक्ट्री के लिए, तब फार्मर क्या करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट किए एक्स प्राइस को, मार्केट प्राइस समझो 10 पैसे से बढ़ गई तो वो हमें न देता, मार्केट में माल शिफ्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और कंट्री के लिए। हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म किए है वो हमें कंसिस्टेंटली माल मिलेगा नहीं, तो हमारा जो फॉरवर्ड ट्रेड है, फॉरवर्ड मार्केटिंग है, वो पेनल्टी के ऊपर रहता है प्रोसेसर का, तो वो फंस जाएगा। अल्टीमेटली हमारे कंट्री का नाम खराब होगा। जो फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, फार्मर को टाइम पे पैसा मिलने वाला है, वो पैसा मिलेगा नहीं। तो फिर बीच में लोग एक्सपोर्टर और प्रोसेसर को फिर जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ये चेन है, ये इंटीग्रेशन है, फार्म, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एंड कंज्यूमर, ये एक ही साथ चाहिए। ये सब खुश रहेंगे तो ही ये चेन ब्रेक नहीं होगी और सबको फायदा होने वाला है। सो ये जो मार्केट का सरप्लस हमारे पास पड़ा है, अभी ओनियन 7 रुपए है, आप देखेंगे 2 महीना होल्ड करेंगे, कैपेसिटी जितना है फार्मर का, 2 महीने के बाद फेंकना चालू करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी आगे आके थोड़ा पॉजिटिविटी लेके ये ओनियन प्रोसेसिंग, जैसे कि गुजरात में ओनियन प्रोसेसिंग के 200 प्लांट है। ओनियन पैदा किधर होता है? नासिक, लासलगांव में ज्यादा होता है। उसका प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? गुजरात में। क्योंकि पावर कॉस्ट जो है गुजरात में लिटरली हाफ है। तो महाराष्ट्र में पावर कॉस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी ये प्रपोज करना चाहिए कि यहाँ जो प्रोसेसिंग करेगा नासिक, लासलगांव के आजू बाजू में, उनको पावर कॉस्ट ये हम देंगे, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो रही है अभी गुजरात लेके जाने की, वो कम होगी और हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारा जो ओनियन अभी फेंकते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग चाइना, टर्की, इजिप्ट और मोरक्को, ये जो कंट्रीज अपकमिंग है एग्रीकल्चर में, उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो प्रॉपर सप्लाई चेन खड़ा करना पड़ेगा, जो कि हम प्रोसेस नहीं करते तो फेंकते हैं, पेरिशेबिलिटी बढ़ती है, स्पेशली द वेजिटेबल्स, उसको भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। टोमेटो में हम लार्ज प्रोडक्शन लेते हैं वर्ल्ड में, लेकिन सबसे ज्यादा पेस्ट टोमेटो की बनती है चाइना में। सेम हर एक तरीके का, जैसे बनाने का बोला मैंने, हर एक प्रोडक्ट का वैसा ही है। हम लोग वी आर लैकिंग ऑन प्रोसेसिंग साइड। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इज वेरी हाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इतना ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जैसे एक्सपोर्टर को फिर प्राइस मैच करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल का तो मैंने बोल दिया, हमारे लोगों के पास एक तो दे डोंट एक्सेप्ट, उनके पास स्किल नहीं है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है डिजिटलाइजेशन से।
फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बाकी ज्यादा इसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, रादर टू वर्क, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर वर्क, उसमें कॉन्सेंट्रेट कम करते हैं। स्किल डेवलप करने की जो स्किल इंडिया लाया है, लेकिन कितना फायदा हो गया हमें, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कोई स्किल मॉनिटर नहीं करता है, उसको कोई वैलिडेट नहीं करता है कि सच्चे में स्किल लेबर हो गया, स्किल मैनेजर हो गया, स्किल सुपरवाइजर हो गए। तो वहां भी बहुत बड़ी गैप है, वहां भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। कैन यू टेक दिस फर्दर, नेक्स्ट पेज प्लीज। तो डिपेंडेबिलिटी ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत है हमारे यहाँ, जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, लैक ऑफ, हम पर्सनली खुद लैकिंग करते हैं पर्सनल हाइजीन में, खुद हमारे शरीर की चिंता करते नहीं, हम प्रॉपरली हैंड वॉश करते नहीं है, हम प्रॉपरली मास्क लगाते नहीं है जो हेड कैप लगाना चाहिए, या इवन फार्म पे भी यू विल बी सरप्राइज, जो हमारे ऑडिट होते हैं, हमारे ऑडिट जो यूरोपियन लोग आते हैं, स्पेशली जर्मन्स, हमारे प्लांट तो वर्ल्ड क्लास है, हमारे प्लांट में ऑडिट करते नहीं, उनको मालूम है ये प्लांट वर्ल्ड क्लास है। सरप्राइजिंगली दे गो टू द फार्म, और फार्म में कहा जाते हैं, फार्म में जो जाते हैं वो डंपिंग यार्ड पे जाते हैं, फार्मर का जो डंप यार्ड रहता है वहां सब पूरा डंप करते हैं, और जो डंप यार्ड को हम मराठी में बोलते हैं उकिरडा, तो वहां क्या देखते हो, वहां फेंके हुए केमिकल्स के बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स देखते हैं। कि हम जो एक्सपोर्टर है, एक प्रोग्राम देते हैं हम उनको कि ये आईपीएम करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, ये पेस्ट हम लोग स्प्रे करेंगे, ये पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, उसको लिख के देते हैं उनको कि इनकी एमआरएल लेवल जो है, मिनिमम रेसिडुअल लेवल, ये विद इन द लिमिट्स रहेगी, ये लिख के देते हैं जब हम, तब उनको भरोसा नहीं है हमारे इंडियन फार्मर्स के ऊपर, तो वो क्या करते, लिख के दिया हुआ वो सही है क्या, वो कंपेयर करने के लिए डंप यार्ड पे जाते, उकेड़ा पे, और वहां फेंके हुए कार्टन्स और एम्प्टी बॉटल्स देखते, और वहां से वो फिर सोचते कि इन्होंने जो लिख के दिया है प्रोग्राम, और वहां जो मिली है हमको बॉटल्स या कार्टन, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। फिर वो बोलते नहीं, वी डोंट वांट टू बाय स्टफ फ्रॉम यू। तो ये कहां तो भी हम लोग लैगिंग है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो कैन यू टेक इट फर्दर। इनोवेशन भी बहुत कम है हमारे यहाँ, लैक ऑफ नॉलेज तो मैं बोला है, प्रोसेसिंग का नॉलेज नहीं है, प्रोसेस इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है। यस, नेक्स्ट प्लीज। एज आई टोल्ड यू, दिस इज लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन का लेक्चर देना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन, रोस्टिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, फ्रीजिंग, चिलिंग, पिकलिंग, canning, freeze drying, cryogenic grinding, fresher processing. This is all related with grain, herbs, spices, then food के कोई आइटम है, बाद में तो ready to eat, ready to cook है, chocolate है, confectionery है, lot of things are there. So अभी मिलेट ऑफ ईयर डिक्लेयर किए हैं, मिलेट के प्रोडक्ट्स है, कंट्री ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट ऑफ ईयर डिक्लेयर किया हुआ है ये साल का। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट प्लीज। ready to eat, gluten free, GMO free, sugar free, health based, high protein based, plant based. These are the demands now with the changing requirements of consumer. और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट एवरी डे चेंज हो रही है, एवरी डे उसको स्ट्रिंजेंट नॉर्म चाहिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के, कलर के, सिंथेटिक कलर कोई चाहता नहीं है, सिंथेटिक फ्लेवर कोई चाहता नहीं है। ये जो चेंज आया है, अभी आया है वर्ल्ड मार्क में सेहत को लेकर, तो ये चेंज हमने भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई थिंक आई हैव शेयर्ड मोटा मोटा जितना करना चाहा था, मैंने बहुत कोशिश की है, जो ऑर्गेनाइजर कमिटी ने मुझे जो भी सब्जेक्ट दिए थे वो देने की। दिस इज वेरी रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड, बोथ सब्जेक्ट्स आर वेरी डायनामिक एक्चुअली। हम लोग बहुत कुछ इसमें कर सकते, काम कर सकते। आप जैसे लोगों की यहाँ ये बिजनेस में आने की बहुत जरूरत है, और आप आएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। खाली मेरा एक त्रिसूत्री रहेगा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी करो, आप ऑयल बनाओ, सिंथेटिक फ्लेवर बनाओ, फूड बनाओ, एग्रीकल्चर करो, बायो
प्रोडक्ट्स बनाओ, हाउस प्रोसेस करो, स्पाइसेस प्रोसेस करो, जो भी करना है वो करो, कुछ भी करना है करो जिंदगी में, लेकिन दिल से करो, कंसिस्टेंटली करो, पॉझिटिव्हली करो. डू इट पॉझिटिव्हली, कंसिस्टंटली, दिल से, प्रेमाने करा, मनापासून करा, प्रामाणिकपणे करा, एथिकली करा. इतना ही मैं आपका मेरा त्रिसूत्री आपको बोलता हूं. आपने इतना टाइम 1.5 आवर ऑलमोस्ट मुझे सुना शांति से. सो मैं आपका मेहरबान हूं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. देवकर सर, आपने मुझे, आपके कमेटी ने मुझे यहाँ आपके सब कॉन्ट्रैक्ट से बात करने का टाइम दिया और मुझे यहाँ बुलाया. धन्यवाद सबको और विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो एक 5 मिनट और दे दूंगा. जो टाइम दिया था वो टाइम अप हो गया है, करेक्ट, एट 8:30 नाउ. सो आई वुड लाइक टू hear some questions and I will try to answer. If not now, ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो बाद में मैं आपको आंसर दे दूंगा थ्रू मिस्टर देवकर. हेलो. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. सच अ वंडरफुल सेशन आई कैन से. बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने, मतलब मैंने तो कह सकता हूँ जितने भी, मतलब इतने लोग जूम पे आ गए, फेसबुक पे इतने लोग सुन रहे हैं आपको, डेफिनेटली हमारे आंखें खोल दी आपने एज फार एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग इज कंसर्न. आई कैन डेफिनेटली से दैट ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर दिस ऑडियंस, क्योंकि थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो कुछ Few of क्वेश्चंस the questions I can answer now if they are really. On behalf of FIP, once again from bottom of my heart, thank you so much for your valuable time, sir. Thank you. And on My behalf of, pleasure. thank you very much. You got very vast knowledge and clarity and the passion, the way you have studied the things, and of course your profile. You are getting into so many companies that itself speaks. But you have further proved us by listening you. आपको सुनने के बाद और भी हमें ज्यादा ये इसमें ये हो गया. तो क्विकली हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे. Yes, please. आई विल रीड सम क्वेश्चंस कुछ चैट बॉक्स में आए हुए हैं. बाद में आई विल थ्रो द हाउस ओपन. Sir, Indian customers are spoiled once they need to best quality but get lowest price. Hence, the producers gets demotivated. About export, there is no hand holding. People fear about losing money. He has given his own statement, Mr. Sanjay. This is absolutely right, because we also did burn our finger into exports. The reason behind is that, as I told you in my session, during my session, our cost of production is very high. Our even internal transport cost is very high. To reach to one place to another, we are paying very high cost to compare to the Western world. If you see, our rupee is 85 against dollar, and same is with euro. Our most of the exports are happening with these currencies. Maximum currency is being used is dollar, and the second currency we are using for export is euro. So if you compare with dollar, our cost of transport and our cost of production is very high, very, very high. So there, even I made a statement post session, this budget actually, in Agro One, that we need to subsidize the agriculture transport separately. Government need to think over it, because this sector is going to contribute a lot into world's, in GDP, in our growth. So that was one of the point. And our goods are rejected. The reason behind that, we are not practicing, we are not genuinely practicing. The products which are available biologically stamped, they are not biological 100%. So validation of those, that is not happening. We are carrying a lot of shortfalls at our end. हमारे यहाँ लैब की कम है कि जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कोरिया चाइना से, रीपैक कर रहे हैं, हमारे ही लोग रीपैक कर रहे हैं और बायोलॉजिकल करके बेच रहे हैं. That is not the 100% truth.
Their control is not there of government. I'm sorry, but this is one of the things that is the at the end of the day, farmer is becoming victim, either or the exporter is becoming victim. That is major problem. And Right. the cost of production and cost of transport, we are not compatible with the even our nearest countries, Thailand, Malaysia. The baby corn we did export. Just to share one example with you, in 2018, 16, 17, we did more than 60 containers of export of baby corn to Germany. Unfortunately, the farmer was getting some certain amounts. In between, agents were getting 3 times than the farmer is earning. So that was what was the story. So farmer to processor direct, it should happen through farmer producer organization either, or farmer can get directly contracts. Big farmers can get directly contract with the processors or exporters directly. In that case, the in between margins can get reduced, and our products will be rather competitive in the world market. Naturally, demand will increase and farmers will get more and more sustainability. Right, sir. Thank you. Next question, Mr. Sridhar Patwal has asked. There are multiple questions in that, in fact. Can you have a loud words, please? Yeah. How can someone start business of exporting spices to UK, Europe? What measures do we need to take in terms of packaging, quality processes? Can we get in any help for the same from FIIP regarding the same? Yeah, question is for you, but in terms of my knowledge into the exports is that we have to follow, if we want to export to the European countries or US, at least we should have a BRC certified plant, British Retail Consortium. If we want to sell our products into the European or American customers, then we should have that. And as I told you, even the post-harvesting practices are really worst. We use our chappals and shoes to fill the chili bags. So you can see the aflatoxin level is at a very high level. So right from the cultivation, harvesting, good manufacturing practices need to be followed. During transportation, I told you that the trucks are going to Mumbai and how the people are sitting on the vegetables with chappals and boots and all, how it is being stored, how it is being handled. So that care we need to educate our farmers, youngsters, entrepreneurs, graduates, that we should teach them what is the rather demand from the consumer. That awareness need to be bring together with the government, technical institutions, people like you, your organization, people like us should always speak on these subjects. So then and then only, because it is an education. We should bring that education in us. Because earlier the immunity was different, requirements were different. Now norms are changing. That is why we are unable to export. That is adulteration. A lot of adulteration is happening in our country. We should stop that. We should not buy adulterated product. We should start from ourselves. That is what the change need to bring in us first. So that is what is required. Sir, just wanted to interrupt. Sorry for interruption. Actually, my name is Atul and I am from FIIP. In addition to what Vikas sir have said, I just would like to add a few more things. If you want to know about the packaging and all the standards, so those you can get it from APEDA website, and there is another website, Indian Trade Portal, where you can get the policies of destination countries. So if you want to export it to say UK or any other European country, so with the help of your product name, you can check the policies, what are the policies of importing countries. And then with the APEDA website, you can get the packaging details. So that is what I wanted to add. Thank you very much. Yeah, thank you, Atul sir. This is Sridhar Patore. This first thing first is I would like to thank every one of you for the
best consultation, best guidance for the business. Now we are a small setup. My partner Bhagyashree Kulkarni also is part of this session, where we are. There are particular spices like turmeric where we are connected to the farmers, and in terms of hygienic and having the control onto the packaging, that is something that we are confident that we can have a control on it. However, as an entrepreneur, like we are doing the sales in certain parts of Maharashtra. Now, my question was specific about what kind of additional measures do I need to take? Of course, point taken that hygiene, and we have to look from the end to end as to how it should be. But if I have a small organization where I'm selling my spices to friends and their families, where word of mouth also playing a big role here, of course, and we are trying to do something with the help of say Facebook and all, where we reach to the larger audience, apart from the family and friends. Now for scaling it up, or to start with the for the international level, as an enterprise, what do I start? There must be certain possibly there could be starting with the international things itself. There could be some international, as our sir suggested, there could be certain certifications. Will that be will those things change for each country? And also, like when I try to find out some people either for UK or Europe, will that be, say I want to start with the of course with my limited capital I want to start, will I have to, like everyone else wants to send the sell their product to UK or Europe, should I start with that, or should I try to also check whether I can get something in the African countries also? What are your views on that, sir? Sridhar, thank you for your question. The question was very big actually, but okay, I will make it short. The very important is BRC certificate is the basic thing to enter into every country, right? There is a IFS also, mostly is applicable to the France and Germany, but BRC is well acceptable everywhere in the world, even including in Japan. That is a British Retail Consortium. At least you should have that certification with you as an entry point. And then onwards, then residual levels is very important, as I told you. These EU 2006 standards, particularly for your product, you need to go through their requirements of a European Union if you want to export to Europe, and Canada and US, their requirement of MRL levels. You have to follow that and has to get certified from our internal labs from our country. And there are international labs also, TUV, HGS, Eurofin. There are many labs are available in our country. So you should approach them for the minimum requirement of as per their country's norms. Then you can go ahead with the 100% traceability. You can bring the artificial intelligence. If you scan your turmeric, any part of the world, camera will reach to the farm, and then the total history of farm, right from the soil, health card till cultivation practices, varieties, and when the watering is been done, then the harvesting is been carried out. So that all record will be there for bringing that transparency with your customer. That is at the end. But you should start at least from the certification perspective. Then, of course, the packaging has to be at international standards, then label design, then shelf life. So these are all, again, different aspects to enter into the international market. Hope my answers are in line with your larger question. I think, sir, let us definitely. get into Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Patoliji. Thank you, sir. Let us have a very specific question and write specific answers, because generic and large questions will be time consuming. Next question, sir. How do we get the information related to government subsidies and help? There are many departments. Maitri is another department. There are APEDA. There are National Horticulture Board. There is a Ministry of Food Processing website. You can go and check it, what kind of subsidies are given by the central ministry. There is a cold chain project, 10 crore rupees subsidy has been given. There is a smart project, Maharashtra government is the nodal agency. There is a magnet project. There are some subsidies. Yes. इसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में.
Ramakant ji. Your voice is cracking. It is not audible properly. Yeah. You can type. Yeah, next question Next. is, can coriander leaves be processed? If yes, how and what kind of products are made by it? We can discuss that subject in a different. It is again another subject. It can be processed. There are 5,000 species in our country which can be processed. In Oh, short, great. हर चीज जो हम खाते हैं उसको प्रोसेस कर सकते हैं 100%. Okay. कुछ So- चीजें हमको मालूम भी नहीं है. There is a department working called Medical Plantation Board. So there are wild products also available in our forest and jungle which we are not aware. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विदर्भ में हम कौन सा फार्मर प्रोड्यूस का वैल्यू ऐड करके मार्केट में लेके आ सकते There are हैं? many products which can be Many products. cultivated. Considering the Vidarbha or drought India- level, there are many products can be cultivated. सो अरविंद खांगवा, आपने पूछा है कि प्रेजेंटेशन आप शेयर कर सकते हैं. सर ये जो एंटायर जो प्रेजेंटेशन आज का सेशन है आपको यूट्यूब में और फेसबुक में अवेलेबल रहेगा, आप रिपीटेडली देख सकते हैं. देयर इज नो इश्यू अबाउट इट. ओके सर, प्लीज गिव इनसाइट ऑन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. कैन वी हैव अ सेपरेट ट्रेनिंग? से हम आगे और इस प्रकार के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि शुरुआत में सर ने बोला ये सारे टॉपिक इतने व्यास्ट है. उन्होंने संक्षिप्त में आपको आज आंखें खोली है. ठीक है, तो डेफिनेटली हम टाइम टू टाइम सर को भी रिक्वेस्ट करेंगे अगला कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए. आज हमें पता चला कि इतना अपॉर्चुनिटीज है, इतना वेस्ट, मतलब एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेस में इतना स्कोप है. तो डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज सच specific programs in the future, sir. Okay. I have just briefed 1%. Yeah. So can we have opinion on meat and protein processing, including egg and chicken, mutton? There is again big subject. Yes, it is possible. Definitely. उसके लिए अलग से हम बात करना पड़ेगा, but you can have it definitely. Okay. Sir, please give us insight on drying dehydration. Again, it is a big topic. Sir, please write down all the schemes in chat box. Sir, it is मतलब very difficult to mention all those schemes in the chat box. But जैसे आपको सर ने कम से कम 8 वेबसाइट के नाम बताए हैं, आप अपना मतलब सर्च कर सकते हैं. ओके, या आप FIB में सेपरेटली आप कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. ओके. सो नितिन सोनी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके आपका जो सवाल है कर सकते हैं. विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस. ओके. या नमस्कार सर. नितिन सोनी. हाँ नमस्कार सर. हाँ Yeah, namaste. आई एम ऑडिबल. Yeah. Go ahead. हाँ हाँ सर, मैं बोलना चाहता था कि जैसे सब चीज अपने पास प्रोडक्ट है, तो अपन ना बायर कैसे फाइंड करें और उनको कन्वेंस कैसे करें, व्यापार कैसे बैठाएं. There are different ways to reach to the consumer. Website is there. You have to build your website. You have to visit to the customer. Who are the customers? You have to visit to the exhibitions. You have to participate in the exhibitions. So there are many ways where you can reach to the consumer. और कन्वेंस का भी कुछ बता सकते हैं. कन्वेंस कैसे करें, Sorry? कन्वेंस कैसे करें उनको, जैसे व्यापार बैठाए कैसे. अपने को पता है कि ये ले रहा है ये सामान अपने से, जाके भिड़ने का, अपन कैसे बेचना है. उसको आपका प्रेजेंटेशन देने का. How you are different, you have to differentiate. How you are different than his existing supplier. What are your USPs? तो आप ultimately it is your skill. You have to obtain that skill to sell your product. ओके सर. So for moringa powder export, how I found buyers from Europe? Again, it is a very big subject, very specific subject. So you can explore again exhibitions, importers, list of importers. There are exim service providers where you get the specific importers name from them. So you can subscribe them and you can get those informations. So thank you, sir. Thank you so much. Before we close in on, I'll request Urmila ma'am, can you share the slides next? For few people are asking about how can we connect to FIP and all. तो अभी जो FIP का ब्रीफ का जो प्रेजेंटेशन था, अगर आपने उसको आगे के 2 स्लाइड है जहाँ पे हम
स्पॉट और नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। 2 स्लाइड है, मुझे शेयर करना है। आगे आगे जाइए। Yes, friends, few of you have raised questions. How can we connect to FIIP? So we have got 2 kind of membership. This business spot is a primary level membership where you will have online digital through अपना networking रहेगा. You can promote your product, you can interact, you can do one-to-one. Okay. सो ये क्यूआर कोड आप क्या स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, या ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करके इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फॉर्मली एक फॉर्म है छोटा सा, वो फिलअप करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, इट इज 1500 रुपीज इसका मेंबरशिप फीस है, एनुअल फीस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो नेटवर्क प्लेटफॉर्म है विच इज अ मेजर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन कर ले सकते हैं या इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो https://fip.in/u/BNP, दैट इज बिजनेस नेटवर्क प्रोग्राम। तो इसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस नेटवर्क में आपको मेजर ये कंट्रीब्यूशन लगेगा, हमारे एग्जीबिशंस होंगे। हमारा ये तो आज का जैसा सेशन है, ये तो हर वीक हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम अपना बिजनेस कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स इन सबके लिए हम करते ही है। बट इसके अलावा आपका बिजनेस ग्रो करना है तो या मतलब आपको नेटवर्क बढ़ाना है, या हमारा एग्जीबिशंस होते हैं, या हम फिफ्थ में विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हम कोर टीम मेंबर को चुनते हैं बेसिस आपका इंटरेक्शन, आपका इंटरवेंशन, आपका कंट्रीब्यूशन, इसको देख के हम आपको कोर मेंबर टीम में भी ले सकते हैं। ये नेटवर्क का ये फायदा है। तो ये 2 चीजें हैं, तो आप इसके जरिए फिफ्थ को कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। So thank you sir, thank you so much. We have a very wonderful session today. Definitely audience have enjoyed. तो हम अभी जैसा आपके सवाल आ रहे हैं बहुत ही मतलब व्यास्ट है, वो हम अलग अलग प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मेन टाइम आप फिप के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे जैसे हमने इंडस्ट्री इनसाइट का बिगिनिंग में स्लाइड्स में बताया, वैसे बहुत सारे हम टॉपिक्स के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। Just would like to add a few more things. Thank you from my side also, and Nana sir is also want to say a couple of words. Yeah. Can you stop the sharing? Yes. So thank you very much विकास सर, आपने आपका काफी अच्छा टाइम यहाँ पे दिया, और फिर के जितने भी ऑडियंस है, सारे ऑडियंस ने आपका जो सेशन है आज का काफी एंजॉय किया है। सो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जितने भी आज के टॉपिक्स यहाँ पे रेज किए, जो भी नॉलेज शेयर किया है, एक्चुअली ये इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये जरूरत को हम किस तरह से कंप्लायंस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ चुके हैं, लेकिन हमारे भी कुछ टाइम्स कमिटमेंट्स होती है, तो टाइम्स कमिटमेंट्स को सामने रखते हुए आज सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि जितने भी चैट बॉक्स में सवाल आए हैं, वो सवाल को एक जगह पे लेके इसको हम लोग ओपन फोरम में डिस्कशन के लिए कैसे लेके आ सकते हैं, अगले कुछ सेशंस में उसको जरूर ट्राई करेंगे। कुछ एग्रीकल्चर के कुछ सेशंस और भी लेने की यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि 1-2 पॉइंट्स हमारे सामने आ चुके हैं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो बहुत वास्ट है, हर एक पॉइंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उसमें अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर सेशंस, इसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज लोगों को मिलेगा, और वो नॉलेज को सही तरह से हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर करने की जरूर हम लोग कोशिश करेंगे। सो सारे ऑडियंस का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर द विकास दांगट सर, कि आपने एक छोटे से गांव से आपका शुरुआत किया, और आज आपने वर्ल्ड के 100 के ज्यादा कंट्रीज में आपने आपका प्रेजेंस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे गांव की, हमारे जिले की शान है। सो मैं आपको कांग्रेट्स भी करना चाहूंगा, और आपका यहाँ पे धन्यवाद भी करना चाहता हूँ विकास सर। सो थैंक यू एवरीवन, एंड ओवर टू सीबीके सर। Okay, thank you, Navnath sir.
So now we are towards closing the session. Once again, I thanks Dangat sir and the entire audience. Thank you very much for your time. And sir, definitely would like to invite you for specific sessions in future. We need your support because this is a such a important session. And मुझे ये मतलब ये क्या बोलते हैं? I'm sure that most of these people are into this agricultural some or the other kind of business, and many of them might be holding a land also. So myself, I got some 22-acre land. I'm not मतलब I'm thinking कि क्या मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चर में, कौन सा क्रॉप मुझे लेना है, बहुत मैं सोच रहा हूँ. बट डेफिनेटली आज का आपका सेशन मुझे भी बहुत ही मतलब मदद होगा समझने में. एंड आई विल डेफिनेटली बी इन टच विद यू इन फ्यूचर. So thank you so much, everyone. Thank you all. I'm taking leave. Thank you so much once again for inviting me for such a wonderful evening. Thank you once again, and I wish all the best to everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So, Thank you. yeah, Thank you so much. we are closing the day for here. Okay.